डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है अगलीनेस, वियर्डनेस. योर ब्रेन फॉर्म्स अ स्टोरी बिहाइंड इट कि अब तो अगली है तो कुछ भी नहीं होगा, पीपल वोंट लाइक यू, ब्ला ब्ला ब्ला. यूजुअली पीपल डोंट फोकस ऑन द स्टोरी बट दे आर जस्ट फिक्सेटेड कि मेरी ये बॉडी पार्ट खराब. ऑफ कोर्स. राइट. सो कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि मिरर चेकिंग होता है, रीअश्योरेंस सीकिंग फ्रॉम योर लव्ड वंस और अदर पीपल, कंपैरिजन होता है टू अ पॉइंट कि लोग छुप जाते हैं. They don't even come out sometimes. It actually becomes very severe in some cases. तो किसी ज़माने में एक हेल्दी इंसान माना जाता था कि if somebody is overweight. हम कहते ही मॉडल इसलिए हैं किसी एक्टर को या किसी को क्योंकि मॉडलिंग इज द बिहेवियर, यू मॉडल देम. तो दैट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स योर परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ एंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. God, I look so ugly. My eyes, my lips, मेरी नाक एकदम पकौड़े जैसी है. What seems so normal for others might be a disgust for the people suffering. Lot of us live with these inferiority complexes and a lot of us decide to go under the knife to correct these perceived flaws. इंडिया में आज के टाइम पे around 1 million people every year get diagnosed with body dysmorphic disorder. And to understand this disorder in depth, we again have with us Ayush, who helped us understand substance abuse in great detail. So I welcome you, Ayush, to Heal It, which is a platform to inform, educate, and empower the youth while disseminating the right information about mental health. So Ayush, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि what made you interested in the field of psychology and how you carved a path in this field? First of all, thank you, Saga, for inviting me here. So, my journey in mental health and psychology, I would say, has started way before I entered college formally. Okay. So, when I was in school, back then, I did not have an internet access and computer इतने popular नहीं थे. I was going through a lot of anxiety myself, all right, and anxiety था, काफ़ी ज़्यादा confidence issues थे, self-worth issues थे when I was growing up, and I wanted to seek help, all right, पर मुझे ना पता था इस बारे में कि कोई मुझे help कर सकता है, ना ये पता था कि we can actually go to someone professional to seek help. Right. So as a teenager, what would one do? हम क्या करेंगे? हम दोस्तों के पास जाएंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे, या अक्सर दबा के रखेंगे मन में और वो निकलेगा नेगेटिव बिहेवियर के रूप में, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी. सो आई वाज हैविंग दिस ब्रेक डाउन इंटरनली. तो सागर उस टाइम कुछ पता नहीं था, जैसे तैसे इट केप्ट अफेक्टिंग मी एंड आई सफर्ड थ्रू इट. कुछ कुछ चीज़ें बड़ा हुआ, कुछ समझदारी आई तो आई वॉज एबल टू नेविगेट बेटर. लेकिन आई ऑलवेज felt that lack of a person who can actually be so open to me, listen to me and actually say ki I can help you. Right. I know this thing. Right. 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 I was able to share with my friends and all, but they could not relate to it. कि क्या है? ठीक है. कुछ Hollywood references, कुछ information ज़्यादा हुई. I realized that there is actually a person जिसका काम ही यही है. There is a profession where people can go and talk their heart out and they know how to help you. Right. They don't judge, they don't do anything, they don't ask you weird questions. It's comforting. Right. Tried to look for it and I understood that this person is called psychologist. Right. And honestly Sagar, तब तक not even in my vicinity एक भी इंसान ना psychologist था, ना उसके बारे में कोई बात होती थी. Right. That which was unfortunate of course. So then I wanted to be that person for somebody else. And as I maneuvered through it, I became that person who I missed as a child. And now I'm helping here people to overcome their mental stress, their whole processes where they struggle in day-to-day life. Right. So yeah, this is my journey into the field. Amazing. Ayush, you mentioned you yourself felt that you were not very confident. और जिस सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसमें से एक ही ट्रेट भी देखा जाता है which is body dysmorphic disorder. जी. तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि body dysmorphia क्या होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है, और हाउ इज इट डिफरेंट फॉर द पीपल हु परसीव दिस एज अ रियलिटी हु आर गोइंग थ्रू इट. सो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है अगलीनेस, वियर्डनेस, ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन विद समथिंग. नाउ बॉडी डिस्मॉर्फिया मतलब बॉडी के साथ डिससैटिस्फैक्शन. राइट. ऑलराइट. सो इन दिस व्हाई इट बिकम्स अ डिसऑर्डर,
sometimes people start perceiving their bodies or an aspect of their body as ugly, hideous, something very stupid or clown like. कि मैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, राइट? मेरी नाक ऐसी है, मेरे लिप्स ऐसे हैं, मेरे बाल खराब हैं. और यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, व्हेन हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इट इज़ परसीव्ड फ्लॉ, इट्स नॉट एक्चुअली देयर. ओके, और इफ इट इज़ देयर, इट इज़ सो नेग्लिजिबल दैट अदर पर्सन कैन नॉट इवन फिगर इट आउट. ऑफ कोर्स. राइट? तो सागर, जैसे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इफ़ यू आर लुकिंग एट मी राइट नाउ, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ माई इनसिक्योरिटी अबाउट माई बॉडी? No, it's very difficult to. Right? You can't. But I would know internally. Of course. Same goes with you, right? Right. When I said this question कि आप बताओ कि मेरे अंदर क्या insecurity है, you would start to search for it maybe, or maybe our audience will start searching for it कि क्या है, क्या चीज़ होगी. Right. And जितने लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोगों के अंदर हज़ारों different चीज़ें सोचेंगे वो. Definitely. But nobody would actually realize what it is, क्योंकि कुछ evident ही नहीं है. और है तो इतना negligible है कि वो आपके लिए important ही नहीं है. तो क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया के, या इस डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेस अबाउट दिस परसीव्ड फ्लॉ. ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर आपका ब्रेन स्टक हो गया है, आपका सारा ध्यान, अटेंशन और थॉट्स उसी पे रहेंगे. ऑलराइट? रिपीटेटिव थॉट्स आते रहते हैं. यू बिकम हाइपर फोकस्ड ऑन दैट. नाउ योर ब्रेन फॉर्म्स अ स्टोरी बिहाइंड इट कि अब तो अगली है तो कुछ भी नहीं होगा, पीपल वोंट लाइक यू, ब्ला ब्ला ब्ला. यूजुअली पीपल डोंट फोकस ऑन द स्टोरी, बट दे आर जस्ट फिक्सेटेड कि मेरी ये बॉडी पार्ट खराब. ऑफ कोर्स. राइट? ऑफ कोर्स. It creates n number of anxiety, okay, related expressions and different changes in the body and brain. बहुत anxiety होती है, बहुत गंदा लगता है इंसान को अपने बारे में. Anxiety को कम करने के लिए सारा प्रयास होता है. A person gets into the habit, जिसको हम compulsive actions भी कहते हैं, repetitive behaviors, to manage it somehow. अब कुछ खराब है तो करेक्ट करो, settle myself down. तो जो भी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए स्किन, तो अब एक इंसान स्किन को ही ठीक करने में लग जाएगा 24 घंटे. बट ध्यान दीजिए कि आई टोल्ड यू इट्स अ परसीव्ड फ्लॉ. कुछ है नहीं, लेकिन आप एक्शन ले रहे हो टू ओवरकम इट. राइट. एंड नॉट जस्ट सो एनी एक्शन यू टेक, इट वोंट सेटिस्फाई योर डिससेटिस्फैक्शन और एंग्जाइटी. कुछ था ही नहीं तो सेटिस्फाई क्या होगा? सो कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि मिरर चेकिंग होता है, रीअश्योरेंस सीकिंग फ्रॉम योर लव्ड वंस और अदर पीपल, कंपैरिजन होता है, कॉस्मेटिक एप्लीकेशन होता है. बहुत चीज़ें करते हैं. राइट. राइट. टू अ पॉइंट के लोग छुप जाते हैं. They don't even come out sometimes. It actually becomes very severe in some cases. Okay. तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरा मन मान ही नहीं रहा है, it's not getting satisfied, और I am perceiving it still look that ugly. तो फिर मैं क्या करूँगा? एंग्जाइटी बहुत हैम्पर करती है लाइफ को. आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपकी जॉब, रोजमर्रा की जिंदगी आपकी पूरी हैम्पर हो जाती है. That's it. तो क्या ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या इंडिया में खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या जेंडर्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पाया जाता है? जी बिल्कुल. तो जैसे हम रिसर्चेस देखते हैं इंडियन बेस्ड, जो कि हालांकि बहुत कम है इंडिया में बॉडी डिस्मॉर्फिक की रिसर्चेस, लेकिन येस, जो भी रिसर्चेस हमारे पास हैं 2015, 2016, 19 में, उनमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर ये एडोलेसेंस में होता है, टीनेज में स्पाइक कर जाता है. ओके. तो ये एक एरिया है, एज का कोहर्ट है, जहाँ पे आप देखोगे ये काफ़ी हाइटेंड हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, वो एक उम्र है आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, राइट, कंपैरिजन की. आप इन्हेंस होना चाहते हो, आप हाईलाइटेड होना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि लोग आपको साइड लाइन में रखें, राइट. सो यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू ओवरकम दैट. तो इसमें है. जहाँ तक हम बात करें कि जेंडर की, ऑलराइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से मेल एंड फीमेल, रिसर्चेस में कोई इसमें गैप नहीं देखा गया कि किसी में ज़्यादा और किसी में कम. और ये वर्ल्ड वाइड डेटा बोलता है हमें कि देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रेवलेंस ऑफ इट. राइट. हाउएवर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेल्स में एक अलग तरीके का बॉडी डिस्मॉर्फिया, विच इज़ कॉल्ड मसल डिस्मॉर्फिया. अच्छा. कंसर्न्ड अबाउट माई मसल्स, माई बॉडी टाइप, माई मस्कुलैरिटी, है ना, वो देखा गया है प्रोमिनेंटली, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है. राइट. फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर अपने फेशियल फीचर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर ज़्यादा इसके लिए बॉडी डिस्मॉर्फिया में रिपोर्ट करती हैं. ओके. दीज आर द डिफरेंसेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि रेशियो किसी का कम और ज़्यादा है. राइट. एंड दिस इज अक्रॉस द ग्लोब. दिस इज अक्रॉस द. ओके. आयुष, आई वॉन्ट टू टच बेस अपॉन द सोसाइटल एस्पेक्ट्स. ठीक है, कि अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में सोसाइटी की बात करें,
तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है, या मीडिया भी एक तरीके से कैसे इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रीब्यूट करता है BDD में? जी, तो BDD जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी कैसी है, क्या एट्रीब्यूट करोगे आप अपनी बॉडी को, गुड बैड अगली, यू नो, फॉर दैट, फॉर योर ब्रेन टू डू दैट यू नीड अ कंपैरिजन, अ रेफरेंस, राइट? मैं कहूँ कि ये कप बेटर है तो किससे, आई नीड अ रेफरेंस, राइट ये राइट शर्ट बेटर है किससे? तो वेन एवर वी स्टार्ट कंपेयरिंग, एंड एक्चुअली कंपैरिजन ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ही इनेट क्वालिटी है कहीं, इससे हम बेहतर भी हुए हैं, सर्वाइव भी किया है हमने, कि दूसरा इंसान कैसे सेफ फील कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूँ। राइट लेकिन कभी कभी बैकफायर भी करता है, जैसे BDD के अंदर। तो कल्चरली ये देखा जाता है सागर कि हर एक कल्चर, हर एक डेमोग्राफी के अंदर बदलते हैं नॉर्म्स ऑफ ब्यूटी और व्हाट लुक्स गुड, व्हाट लुक्स अपीलिंग, राइट? इवन इन अ सेम डेमोग्राफी अगर आप अक्रॉस टाइमलाइन देखोगे तो किसी ज़माने में एक हेल्दी इंसान माना जाता था कि इफ समबडी इज ओवरवेट, ऑफ कोर्स वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उस टाइप के थे। एग्जैक्टली, इफ यू लुक एट आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दैट, तो Right. वुमेन हु वर हेल्दी, यू नो, दे वर कंसिडर्ड, अगर कोई इंसान ओवरवेट है या ओबीज है कि प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। फिर ये बदल गया कि नहीं, लीन बॉडीज आर Right. बेस्ट, एंड देन फिर कुछ और, फिर जीरो फिगर भी बीच जीरो में काफी फिगर, राइट? prominently आया था। एग्जैक्टली, तो ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। और कल्चरली यस, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जो हमारी माइंडसेट है वो एक इवोल्यूशन की तरह चली है, राइट? एक टाइमलाइन है पूरा। तो जैसे कि अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो एक स्किन कलर को लेकर बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय है, बहुत ज़्यादा एक सेंटर ऑफ, है ना, कन्वर्जेशन है। तो यहाँ पे ये है, हेयर को लेकर है, ठीक है, डेफिनेटली आपकी बॉडी वेट को लेकर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कल्चरली इन्फ्लुएंस करती है एक इंसान की साइकी को। एंड आपके क्वेश्चन पे और बोलते हुए, आपने कभी ये महसूस किया है कि ज़्यादातर, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट जब आप एक जनरल फैमिली को देखते हो इंडिया में, आप एंटर करते हो, किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हो, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? अरे यार मोटा हो गया तो पहले से राइट? अरे यार ये हो गया था, मतलब दैट्स द फर्स्ट रिमार्क दैट दे इट कम्स वेरी Pass on. इन अ फ्लो, जैसे कि हम फोन उठाते हेलो बोलते हैं, वैसे ही ये आता है, राइट? राइट कि अरे तुम पतले हो गए, मोटे हो गए, अरे ऐसा हो गया, अरे क्या हो गया तेरे स्किन को या बालों को, राइट कमेंट वेरी कैजुअली, ठीक है? इतना इंग्रेंड हो चुका है ये कि ये कन्वर्सेशन स्टार्टर ही बन जाता कभी कभी, हाँ है ना? हाँ, तो जब मुझे कोई इंसान बार बार टोकेगा किसी चीज़ के ऊपर, तो मुझे भी उसके अंदर डाउट आएगा कि shit, कहीं डेफिनेटली सही में तो मैं अलग नहीं दिख रहा हूँ। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फिक्स इट। हम ये नहीं देख रहे कि अगले इंसान ने बिना कुछ सोचे समझे एक जस्ट अ स्टार्टर बोल दिया ये बात, शायद कि उसको भी अपने साथ सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो दिस इज़ हाउ इट इन्फ्लुएंसेस योर माइंडसेट। एंड डेफिनेटली मीडिया पोर्ट्रेयल वो एक मेजर सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन का आज के ज़माने में भी, और हमेशा से ही रहा है कि आप लुक अप टू समवन, राइट? यू हैव रोल मॉडल्स। हम कहते ही मॉडल इसलिए हैं किसी एक्टर को या किसी को, क्योंकि मॉडलिंग इज द बिहेवियर, यू मॉडल देम, ठीक है, यू टेक देम एज अ रेफरेंस पॉइंट, राइट तो दैट डेफिनेटली impacts your perception of beauty and strength and masculinity and femininity. राइट So yes. आयुष, आई वांट टू टच बेस अपॉन द बायोलॉजिकल फैक्टर, आपके जेनेटिक्स हाँ. या आपका केमिकल केमिस्ट्री जो होती है, उसका क्या रोल होता है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है इसमें? जी, तो इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम देखते हैं। कई लोग पहले से ही वल्नरेबल होते हैं जेनेटिकली। तो देखा गया है रिसर्चेस में, मेंटल हेल्थ में, कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कोई भी मेंटल हेल्थ की समस्या रही है, डिप्रेशन रहा है, एंग्जाइटी या OCD, तो आपके अंदर BDD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, राइट, ये चीज़ें आपके अंदर इंग्रेंड हैं, लेकिन बस वक्त का तगाज़ा है कि जिस दिन आपको कोई ट्रिगर होगा, जब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा, तो आप भी और मैं भी, कोई भी इंसान एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बदल सकता है, जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रेस से ऊपर जाने पे। मैं उन पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा हु आर मोर प्रोन टू BDD। तो वो किस टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं? जी, 2 तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स हम देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादातर। तो जब मैं पेशेंट्स से मिलता हूँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट बिलोंग्स टू क्लस्टर B पर्सनैलिटी। ओके, ऑलराइट, क्लस्टर B personality, right? So there are some type of personality disorders in cluster B, जैसे कि borderline personality disorder. ओके, All right. उनको अपने आप को अच्छा बनाना एक उनके ट्रेट का पार्ट है, उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ओके, एंड दूसरी बात, अगर वो ये नहीं भी कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स इमोशन। सो इफ एनीबडी पॉइंट्स एनीथिंग आउट, ऑल राइट, they would take it very seriously. Their emotions are very sensitive. Okay. राइट, They would start working on it to make it better, to make it more appealing. All right.
एक और पर्सनैलिटी होती है सागर, दिस इज समथिंग विच पीपल डोंट मच टॉक अबाउट, कॉल्ड हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी. ओके. राइट. हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें एक इंसान ना अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहता है, दे एंड नॉट विद अ बैड इंटेंशन, ओके. दे जस्ट वांट टू बी डिफरेंट एंड विजिबल आउट देयर. राइट. उस पर्सनैलिटी में एक इंसान को लगता है कि मेरे पे अटेंशन नहीं होगा तो आई विल फील डिस्ट्रेस्ड, so they Right. keep improving themselves, Right. sometimes also look eccentric also sometimes. So this is what it is, so nothing bad or good about it. इसमें क्या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं आप attention seeking behavior, but I would still mention it and make it a point to say कि ऐसा नहीं कि कोई bad intention के साथ, they just want to be in limelight, they feel good. उनका ब्रेन केमिस्ट्री ही ऐसा है, they would feel good if people would pay attention to them. Right? तो वो एक्स्ट्रा माइल्स जाते हैं इसके लिए. और एक क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ सोशल एंजाइटी, डिपेंडेंस एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओके. ये लोग एंजाइटी की वजह से कर रहे हैं. वहाँ पे लोग अटेंशन की वजह से इन अ वे कर रहे हैं, राइट. दे वांट कि दूसरे लोग उनको देखें या अप्रिशिएट करें, दे नीड मोर ऑफ दैट. यहाँ पे लोग एंजाइटी की वजह से कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, राइट. सो आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू मेक माई सेल्फ अपीलिंग टू अदर्स, ताकि मैं रिजेक्ट ना हूँ. रिजेक्शन सेंसिटिविटी इनको होती है. राइट. राइट. तो ये दो पर्सनैलिटी. ओके. आयुष, सोशल मीडिया इज ऑन अ राइज. ठीक है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई सोशल मीडिया चला ही रहा है. तो सोशल मीडिया कैसे इस पूरी रियलिटी को मेंड करता है और कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है बीडीडी होने में, मतलब हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डेवलपिंग बीडीडी? राइट. देखिए, रियलिटी बनती ही हमारी ऑब्जर्वेशन से है. राइट. व्हाट वी ऑब्जर्व इज आवर रियलिटी, व्हाट वी डोंट, इट्स नॉट आवर रियलिटी, इट्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड. आजकल क्योंकि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, मोबाइल हाथों में रहता है, हम पूरे दिन सोशल मीडिया कंज्यूम करने की टेंडेंसी बना चुके हैं. अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसको डायरेक्टली बंद कर दिया जाए, पॉसिबल नहीं है. राइट. लेकिन जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलते हो तो आप देखते हो सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं. नाम ही देखो आप कि जैसे इंस्टाग्राम की बात करें, फॉलोइंग, आई एम फॉलोइंग सम, Definitely. राइट. सो इफ आई एम फॉलोइंग यू व्हिच मींस आई वांट टू बी लाइक यू, आई लाइक योर लाइफस्टाइल, आई लाइक द वे यू आर. Right. Then there is a category influencer. We are influencing each other. I want, if you don't want to, I want to influence you to be like me, right? Right. In some way or the other. तो ये नाम में ही ऐसा आप समझ सकते हो कि यू आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड. दिमाग में हमने पहले स्टैंडर्ड बना लिया है, ठीक है, ऐसा होना है, ये आइडियल है, यहाँ पहुँच जाऊँगा तो बेहतर लगेगा. राइट. सो व्हेन वी कीप लुकिंग एट डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि आप कितना समझदारी से यूज़ कर रहे हैं. So the uniqueness in our own individuality that gets lost, our attention goes off from there, and you know it is only sticking to कि इसके जैसा करना. Right. There are a few guys, they have tattoo all over their face. Yeah. ठीक है, मतलब पूरा स्कल पे, नाक पे, हर जगह. मतलब बैक इन जो आप अगर देखोगे तो इंडियन अमेरिकन जो होते थे, तो दे ऑल्सो यूज टू हैव ऑल दोस टैटू ऑन देयर फेसेस एंड ऑल. सो क्या ये टैटू कल्चर जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो हो गया जैसे फेस पे और इन सब पे, क्या ये भी ऐड करता है या कंट्रीब्यूट करता है बीडीडी में? कुछ चीज़ों को वक्त के साथ साथ हमने एक कूलनेस के साथ जोड़ दिया है. Right. एट्रीब्यूशन. राइट. होल साइकोलॉजी और आई वुड से मोस्ट ऑफ इट इज अबाउट हाउ यू परसीव समथिंग. If you perceive tattoo as something cool, you would want to have it, and you would think the people who have tattoos are cool. So I also want to tattoo myself. You would disregard कि मेरा context क्या है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता. आप उसको भूल के अगर टैटू करवा रहे हो just to become better, you think that person is better, so I would become that person, तो definitely it can lead to BDD. पर टैटूइंग का रीज़न जानना ज़रूरी है. अगर मेरे पास कोई एक्सेसिव टैटू के साथ आता है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्कल पे टैटू है, इवन आई हैव सीन पीपल हैविंग टैटूज, यू वुड, आई डोंट नो इफ यू नो, इन आईज ऑल्सो, इनसाइड द आई, राइट, लिप्स पे टैटू हर जगह, राइट, इवन इनसाइड माउथ, ऑन टंग. मतलब इट्स जस्ट नॉट टैटू, मतलब पियर्सिंग भी अगर आप देखो. एग्जैक्टली. तो आप उस चीज़ को कैसा देखते हैं, दैट विल यू नो एंश्योर कि ये बीडीडी है या कुछ और. कई बार ये पर्सनालिटी ट्रेट्स या मेनिक एपिसोड्स में भी हो सकता है, विच इज अनदर मेंटल हेल्थ कंडीशन जहाँ एक इंसान इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, राइट, बहुत एक्सेसिव डिसीजन. बीडीडी को स्क्रीन करना पड़ेगा. आई वुड हैव टू सी, और अ प्रोफेशनल हैव टू सी if the intent behind tattooing is to become something or to hide my flaws, perceived flaws, if I want to hide it, तो ये BDD में contribute कर रहा है. आप बार बार कराते रहोगे टैटू, अगर आपको BDD है
तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. एंड आई हैव सीन पेशेंट्स हु हैव कम, males and females, they are even tattooing in order to enhance their appearance, not just like a symbol tattoo but contouring tattoos. Okay, Right. lip ke andar tattoo just Right. to fill the ink to make the color in a certain way. Right. Or contouring on their abs or some parts of their body. So just that. राइट. अब एक तरीके से मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, एंड वी स्पोक अबाउट सोशल मीडिया. सो हाउ डू वी हेल्प द यंगर जनरेशन टू critically analyze the messages of social media or media in general and to help them understand कि reality क्या है? जी, यहाँ पे बात आती है फिर से कि हमें बचपन से ही इस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए. हमें स्कूल लेवल पर अवेयरनेस चाहिए, हमें पॉलिसी लेवल पर अवेयरनेस चाहिए. देखिए, बच्चों की दुनिया बनती है मॉडलिंग से, यानी कि दे मॉडल द बिहेवियर ऑफ अदर्स, अदर पीपल अराउंड देम. सिग्निफिकेंट टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, इनसे उनकी दुनिया का रियलिटी बनता है. राइट. बच्चे कॉपी करते हैं देखकर. अब अगर हम बच्चों को क्या कंटेंट कंज्यूम करने दे रहे हैं, कितना कंज्यूम हो रहा है, अनसुपरवाइज्ड यूज हो रहा है, डेफिनेटली दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड. वी नो समटाइम्स वी से babies are like blank slates. Of course. So the media is writing upon them. Right. So don't just take things as they are. Questioning. Right. Socratic questioning कहते हैं हम. Right. Question things. Always question. तो if you do that, you will realize it's another part of the world. तो अगर कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस कोई 10 रुपए के साबुन की ऐड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उससे नहाते हैं. नो, Definitely. शो देम कि प्रोफेशन अलग है, रियलिटी अलग है. आयुष, कोई स्पेसिफिक सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं हाल में जिसको लोग एकदम अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली. आई मीन, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट. जैसे बीच बीच में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, जैसे कोरियन ग्लास स्किन, राइट. कोरियन प्रोडक्ट्स ले लीजिए. आप देख सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर हेयर ऑयल्स विच आर प्रमोटिंग कि डेंस एंड घने और वैसे बाल और वैसे बाल, राइट. बालों के आगे तो दुनिया ही नहीं है जैसे, राइट. कुछ प्रोडक्ट्स ले लीजिए मसल्स बढ़ाने के लिए या इन्हेंस करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फॉर राइट. ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, गट क्लेंजिंग, ये सब चीज़ें, ये हर बार बदलता रहता है. जैसे इन प्रोडक्ट से पहले तो दुनिया थी ही नहीं, राइट. सो इट कीप्स चेंजिंग एंड इट डेफिनेटली पुट्स अ प्रेशर ऑन वन सेल्फ एंड लेट वन क्वेश्चन कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ? एम आई समवेयर इन्फीरियर टू अदर्स? क्या दूसरे बेटर हैं? It puts a pressure, and this definitely, if somebody has BDD, it can exaggerate it, and somebody if has a low self confidence, वहाँ पे भी इफेक्ट होगा, प्रेशर आएगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी. आयुष, यू मेंशन कि हमें बहुत ज़रूरी है क्रिटिकली एनालाइज करना, और आई थिंक फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि फैमिली डायनामिक्स, खास करके पेरेंट्स या जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है, इनमें किस टाइप का या ये किस टाइप के रोल प्ले करते हैं विच एक्चुअली कैन गो ऑन टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेवलपिंग बीडीडी, या बीडीडी को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं? डेफिनेटली. देखिए, ऐसा है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो नर्चरेंस का बहुत बड़ा रोल है. एंड साइकोलॉजी में अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है. आप कभी भी थेरेपी सेशन अटेंड करोगे या आप देखोगे किसी मूवी में, तो हर बार आपको थेरेपिस्ट पूछते हैं बचपन में क्या हुआ था, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, राइट. बिकॉज दैट इज द टाइम एंड ब्रेन इज क्रिएटिंग स्कीमाज. हम स्कीमा कहते हैं इसको, राइट. एक प्रोटोटाइप कि ऐसा होता है गुड और ऐसा होता है बैड, राइट. बचपन से अगर आपके पेरेंटल इन्फ्लुएंस या आपके पीयर्स या सिबलिंग्स या कज़न में बार बार एक चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए, जैसे मैं आपको केसेस बता सकता हूँ, मेरे कई सारे फीमेल क्लाइंट्स भी हैं, बचपन से उनके रंग पे कमेंट किया गया है, राइट, कि और कंपेयर किया गया है सिबलिंग्स के अंदर, हाइट कंपेयर किया गया है लड़कों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. लोगों के बॉडी मूवमेंट्स तक पे कमेंट करा जाता है कि तू ऐसे चल रहा है, इट्स मोर एफेमिनेट, ठीक है, राइट. तो दैट इज वेयर आपको क्या लगता है ये मैसेज गया और ये गायब हो गया? इट स्टेज इनसाइड यू, इट्स इनसाइड योर साइकी. इट्स लाइक रेडियो वेव्स, जैसे हमेशा रहते हैं ना, ये हमेशा रहते हैं हमारे अंदर. कीप इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर्स एज वी ग्रो अप इनटू द एडल्टहुड. और फिर ये हमें डिफरेंट वेज में इम्पैक्ट करते हैं और हम अपने उस बॉडी अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. नाउ इफ़ आई हैव बिन ग्रोन अप विद दीज काइंड ऑफ मैसेजेस, मैं अप्रोच करने से ही डरूंगा किसी को, बिकॉज मुझे पहले ही मेरा मन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तेरी हाइट ठीक नहीं है, तेरा कलर ठीक नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता. एंड ऑफ कोर्स व्हेन दीज मैसेजेस आर कमिंग, माय सेरोटोनिन इज डिक्रीजिंग, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ हैप्पीनेस एंड मूड.
वो डिक्रीज हो रहा है, डोपामिन कम है मेरे अंदर। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड सेम गोज विद रिलेशनशिप सागर। रिलेशनशिप में यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इज इम्प्रेसिंग द अदर पर्सन ना, पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, डेफिनेटली। है ना। तो पहले तो अगर मेरे अंदर पहले इनसिक्योरिटी है तो वो इफेक्ट करेगी। सेकेंडली अगर मेरे पार्टनर को कोई पसंद आ रहा है, पसंद आ रही है, और वो बोलते हैं ये बेटर है, इट वुड गिव मी दैट आइडिया कि आई शुड बी दैट। वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग, जिन लोगों के अंदर ये थिंकिंग क्रिटिकल नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे इसको पसंद आता तो आई वुड लाइक टू बी। वो अब्यूज कर सकते हैं, ड्रग्स में जा सकते हैं, सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, एनीथिंग। दे गो टू एक्सट्रीम लेवल्स टू फिक्स देमसेल्व्स, which is never going to be there. डेफिनेटली। That is how it influences and may carry on to BDD. राइट। आयुष, आपने बताया थोड़ा सा कि थेरेपी जो होती है उससे काफ़ी काम आता है। सो व्हाट आर द थेरेप्यूटिक अप्रोचेस दैट वन शुड टेक हु इज अंडरगोइंग BDD या बॉडी डिस्मॉर्फिया? जी, तो इसकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम्पेरिकल एंड रिसर्च बेस्ड थेरेपी है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। डेफिनेटली। और भी कुछ थेरेपीज हैं जैसे एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी एंड देन सोल्यूशन फोकस थेरेपी विच कैन हेल्प इन दिस। ओके। CBT being the most prominent one, where a therapist like me would help you in making you come back to reality ओके। from your illusionary world which your brain has created for you, Okay. based on your experiences, on the words which you have heard throughout your life. कैन यू हेल्प अस विद एन एग्जांपल? Right. कैसे इसमें कैसे काम करती है CBT पूरी तो तरह? CBT एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट थेरेपी है जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड वाई आई लाइक इट इज़ it just doesn't just make you a false positive person. It talks about rationality. Cognitive behavior therapy इसमें दो component है, cognition और behavior, राइट। जो कि दो चीज़ें BDD में affected होती हैं। cognition यानी कि आपकी thinking, you feel that you perceive yourself as having a flaw, right? राइट। कि आप hideous लग रहे हो, आप गलत लग रहे हो, monstrous लग रहे हो, तो thinking की गलती है। फिर आप behave भी ऐसे कर रहे हो, ठीक है, कि आप उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि होगा नहीं और ख़राब हो जाती है आपकी स्किन या जो भी चीज़ पे आप फोकस्ड हो। CBT आपको बोलती है कि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस को, कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई करो कि आपके कोर बिलीफ्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल किसी का कोर बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, तो अब उसकी लाइफ में वो यही चीज़ में लगा रहेगा, सबकॉन्शियसली उसको एक पुश मिलता रहेगा कि आई वॉन्ट टू बी गुड इनफ। So now how can I be good enough? Maybe by making my body better or my skin better or this better or that better. कि मेरी अस्तित्व की निशानी ही है मेरी स्किन या मेरा शरीर, मेरी बॉडी, तो उसी को ठीक करता रहेगा वो। अच्छा, जो उसको लग रहा है कि परसीव्ड फ्लॉ है, CBT थेरेपिस्ट कभी ये नहीं बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। CBT थेरेपी बहुत ही कॉन्ग्रुएंट होता है, जेन्युइन अप्रोच होता है थेरेपिस्ट का। हम बोलते हैं अच्छा आपको लगता है तो लेट्स फाइंड द एविडेंसेस फॉर इट। कुछ रियलिटी होगी तो एविडेंस होगा, ओके। ठीक है। अगर मैं कहूँ ये कप है, रियल है, तो हमें कैसे पता? हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सेंसेस में हम परसीव कर रहे हैं। डेफिनेटली। या किसी और से पूछ के एविडेंस लूंगा मैं, यहाँ कप है या नहीं है, यू विल ऑल्सो से, एवरीबडी विल से दैट इट इज अ कप। तो CBT थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा अपने इन फ्लॉज के बारे में एक्चुअल एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। कितने लोगों ने आपको बोला कि आपकी स्किन खराब है, ओके। कब कब बोला, ठीक है, क्या हो रहा है उससे, क्या हर बंदा आपसे यही बात कर रहा है, ठीक है, और जितना आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो क्या ये सच्चाई में इतना इंपॉर्टेंट है, या जिनकी स्किन एक्चुअली में डैमेज या किसी प्रॉब्लम वश खराब भी है तो क्या सच में वो बिल्कुल ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो ऑल ऑफ दोज एविडेंसेस टू करेक्ट योर थिंकिंग हेल्प यू गेट बेटर एंड कम बैक इन टू रियलिटी। तो CBT में एक 3C फॉर्मूला करते हैं हम कि कैच द स्टोरी इन योर माइंड, ठीक है, कि व्हाट इज द स्टोरी, कि इफ माई स्किन इज बैड, दैट्स योर फर्स्ट थॉट, व्हाट विल हैपन इफ इट इज, लेट्स से इट इज, देन व्हाट विल हैपन। आधे लोगों को पता ही नहीं होता, फिर हम उनको हेल्प करते हैं कि अच्छा फिर क्या होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अच्छा पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा, nobody will appreciate me, they will not invite me, blah blah blah. Ultimately we reach their core belief, I will be abandoned, ठीक है, it means I'm not good enough, ठीक है, something like that, I'm a loser, if nobody is with me I'm a loser. That core belief is what is hampering you, ठीक है। फिर catch the story, फिर check the story whether the story is actually true. आप जिस एक्सटेंट तक कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हो ब्रेन में, क्या सच्चाई है ये, क्या इतनी खराब जिंदगी है इस मोमेंट में, राइट, ठीक है। तो कैच द स्टोरी, चेक द स्टोरी एंड चेंज द स्टोरी, यू चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग दो स्टोरीज, slowly your mind will shift, your mindset will shift, and then your behavioral changes will come, ठीक है। कि चलो अगर तुम कहते हो स्किन खराब है और तुम्हें आइसोलेशन हो जाएगा, तुम्हारा ये वर्स्ट फियर है, चलो ठीक है हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, देखते हैं कितनी ख़राब होती है ज़िंदगी अगले एक हफ्ते में,
Okay. Let's collect the evidences. Okay. And when you actually agree with this and you try this out in your real world, you will find out कि एक हफ्ते में तो कुछ हुआ ही नहीं. मैं जो भी एक्सटेंट तक पहुंच गया कुछ हो ही नहीं रहा. ना मेरे टीचर ने मुझे कुछ कहा, ना मेरे बॉस ने, ना मेरे को कोई रोक रोक के बुला रहा है. नथिंग इज हैपनिंग टू मी. Right. सो जो तुम्हारी स्टोरी बन गई थी ब्रेन में वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड यू विल कम बैक इन रियलिटी. Reality. दिस इज हाउ इट. आयुष यू मेंशन कि जैसे कोर बिलीफ होता है, या जैसे कई बार आपने बोला कि अबैंडनमेंट का एक कोर इशू होता है, राइट? तो ये तो CBT जैसे एक थेरेपिस्ट और जो क्लाइंट है वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है. बट व्हाट अबाउट द फैमिली? मतलब अभी भी जैसे हम देखते हैं, या आपने पहले भी बताया कि फैमिली प्लेज अ मेजर रोल, या रिलेशनशिप्स प्ले अ मेजर रोल. तो हाउ शुड फैमिली डेवलप और फाइन ट्यून देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू हेल्प दोज पीपल हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग थ्रू BDD? जी सागर, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है. एक तो जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी फैमिली तैयार हो मेरे पास आने के लिए और मुझसे समझने के लिए. अगर वो है तो दैट्स द आइडियल सिचुएशन. राइट. I would ask my client that if they want me to help them by doing a family intervention, we can take this therapy forward into a family therapy. Okay. Okay. We sometimes call the family members, especially the significant ones, maybe parents or your wife, your spouse. Call them and then we'll talk about कि क्या problem है, why are they behaving the way they are. ठीक है. तो वहाँ पे हम एक इंटरवेंशन करते हैं. इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड फैमिली अकोमोडेशन ऑफ सिम्टम इन BDD. ओके. यानी कि थोड़ा सा अलग फिनोमिना है. समझाना चाहूँगा मैं कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरा एक पेशेंट है जिसकी स्किन उसको लगता है ख़राब है, बहुत एक्ने है, उसको ऐसा लगता है, जबकि उसको नॉर्मल ही है जितना सबको होता है. नाउ ही वांट्स टू रिपेयर इट. BDD है तो वो रिपेयर करना चाहेगा. सो ही इज़ यूजिंग 10 या 20 डिफरेंट फेस वॉशेस. ठीक है, क्योंकि कोई हल्दी है, कोई चंदन है, कोई एलोवेरा है. राइट. सो दे आर ट्रीटिंग, ही इज़ बाइंग देम एंड ही इज़ अ टीनेजर. सो द फैमिली इज़ ऑल्सो गिविंग हिम दैट प्रोडक्ट कि जितना मर्जी ले ले. और मुझे बोलते सर हमने तो कभी रोका नहीं. वही तो गलती है. राइट. आप बच्चे को प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसके डिसऑर्डर्स को बढ़ावा दे रहे हो अनजाने में. राइट. तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट. तो वो भी हटाना होगा मुझे. एंड लास्टली इन अदर केस सिनेरियो कि मान लो फैमिली तैयार ही नहीं है, ठीक है, तो थेरेपी का काम ये नहीं होता कि हम दुनिया को चेंज करें. हम अपनी अप्रोच चेंज करेंगे. जैसे हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, CBT का अप्रोच ये है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है इट्स लाइक वेदर. सर्दी गर्मी बरसात आती रहेगी. हम मौसम को चेंज नहीं कर सकते. अपने आप को कर सकते हैं, या अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं. तो हम अपने कपड़े बदलते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. तो दिस इज हाउ यू लर्न द कोपिंग स्किल्स. जितना आपको बाउंड्रीज सिखा सकते हैं, असर्टिवनेस सिखा सकते हैं, आपको रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, एंग्जाइटी रिड्यूस करेंगे. तो ये चीज़ें आप करोगे अपने आप को बदलने के लिए. एंड कहीं ना कहीं थेरेपी में कई बार शायद आपको ये भी पता चलता होगा कि फैमिली ने ही क्या पता वो रियलिटी जो है वो मिरर की हुई हो. राइट. जब क्लाइंट आता है आपके पास कि दैट वर्चुअल जो वो झूठ या एक लेके दिमाग में जो कॉन्कॉक्शंस लेके चल रहा है, शायद दैट इज़ ऑल फीडेड बाय द फैमिली. डेफिनेटली. और उसको सेफगार्ड करने के लिए देन दैट पर्सन लर्न्स कि अच्छा नाउ दैट आई एम गेटिंग टू नो कि दीज आर सर्टेन फ्लॉज या दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट आर एग्जिस्टिंग. शायद मेरे को इन पे काम करना है एंड आई हैव टू स्टे अवे या कीप अ डिस्टेंस. डेफिनेटली. तो जब क्लाइंट को रियलाइज़ होता है ये थेरेपी के अंदर कि ये फैमिली की वजह से ही कुछ चीज़ें हैं जो परपेचुएट हो रही है. ठीक है. कई बार ऐसा भी होता है ना सागर कि मान लो मैंने आपको ये समझा भी दिया और आपको समझ भी आ गया कि ओके दिस वाज अ डिसऑर्डर, थिंग्स आर फाइन इन माय लाइफ. स्टिल आप रहे उसी इन्वायरमेंट में रहे हो. ठीक है. सो आई सर्टेनली बिलीव कि हीलिंग नीड्स अ डिफरेंट स्पेस. हीलिंग कैन नॉट हैपन इन द प्लेस यू हैव बीन हर्ट. डेफिनेटली. ठीक है. तो समटाइम द चेंज ऑफ प्लेस इज रिक्वायर्ड. एंड ऑफ कोर्स ये कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं होता, ना ही यहाँ कोई परसुएड कर रहा हूँ मैं किसी को. We would talk about different options a person can take, or different routes a person can take. Sometimes it's not feasible to leave the family or something. Right. But then you learn how to tolerate it. Definitely. To keep yourself safeguarded. और धीरे धीरे आप अपने आप को इतना resilient बना लेते हो that you don't care about anyone. Definitely. मतलब it is not necessary कि आप हर एक problem का solution ढूंढो. Sometimes you just need to tackle it. Exactly. Okay. आयुष, आपने कुछ disorders की भी बात की. तो वो कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं BDD के साथ, और दे ऑल्सो हैव हाई चांसेस कि जिसकी वजह से BDD और ज़्यादा बढ़ जाता है जी. या बॉडी डिस्मॉर्फिया और ज़्यादा बढ़ जाता है?
जी देखिए ये टू वे साइकिल है। ऑलराइट, कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से बीडीडी होता है और बीडीडी की वजह से कई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो सकते हैं ओके जो साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर एक इंसान को ये लगना बहुत लाजमी है कि मैं बहुत ही बुरा दिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर वो उसको करेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को कंपल्सिव एक्शंस में लगा देते हैं और वो बीडीडी डेवलप हो सकता है। बीडीडी की वजह से भी डिप्रेशन डाउन वो हो सकता है आपके अंदर डेवलप, बिकॉज अगर मैं बीडीडी का एक पेशेंट हूँ, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगा, मैं क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ, अगली दिखता हूँ, आई एम नॉट गोइंग आउट, आई आइसोलेट माई सेल्फ। आइसोलेट किया, स्टिमुलस कम हो गए, लाइफ की एक्टिविटीज़ कम हो गई, तो सेरोटोनिन और डोपामिन उतना रेगुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो रेगुलेट नहीं हो तो हैप्पीनेस गई, राइट ठीक है, हैप्पीनेस जाती रही तो मेरे को एनहेडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, फटीगेबिलिटी लो, ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन से और बीडीडी बढ़ेगा। सेम गोज विद एंग्जाइटी। डेफिनेटली तो जितनी एंग्जाइटी होगी उतना ज़्यादा आप बीडीडी में जाने के लिए प्रोन हो जाओगे, और इसमें ज़्यादातर रोल आपके पर्सनैलिटी का होता है, ठीक है, आप किस तरीके का नेचर रखते हो, आपके ट्रेट्स क्या हैं, नेगेटिविस्टिक ट्रेट्स हैं, आप बहुत परफेक्शनिस्टिक ट्रेट वाले व्यक्ति हैं, या आप नार्सिसिज्म के ट्रेट्स रखते हैं, तो भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बीडीडी से प्रोन रख रहे हो, क्योंकि कुछ भी छोटी चीज़ आपको इफेक्ट करेगी, जो भी आपके अंदर कोई फ्लॉ पॉइंट भी कर देगा जो कि वो है या नहीं, यू डोंट नो, you will feel इट that. विल ट्रिगर Yes. Okay. Okay. Ayush, what kind of prevention or intervention strategies can be incorporated to address body dysmorphia या BDD? देखिए प्रिवेंशन जहाँ तक बात करें तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग। Right. एक इंसान में इंसाइट डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर ओन सेल्फ, कि आप अपने आप को कंपेयर ना करें। बहुत ही पुराना एक कोट है ना कि इफ़ यू कंपेयर अ फिश विद अ मंकी Of course. विद द एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री, तो कुछ बात नहीं उसका, कुछ बनता नहीं उस बात में। Right. तो ये एस्पेक्ट बचपन से डेवलप होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को निखारें, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करें, और जहाँ पे एक इंसान अपने आप को डाउट कर रहा है उन एस्पेक्ट्स को इतनी अहमियत ना दें। तो जिन चीज़ों को आप उनका हाईलाइट करेंगे बच्चों का, वहाँ पे उनका सेल्फ वर्थ डेवलप होगा। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सचिन तेंदुलकर बने या लता मंगेशकर बने, Definitely. ठीक है, तो यू हैव टू हाईलाइट दोज थिंग। तो प्रिवेंशन ऐसे ही हो सकता है, स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन हो सकते हैं, अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको हटाने के लिए। दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म इज देयर इन द Right. स्कूल, ताकि सब एक जैसे हैं। ये तो एक जैसे एग्जाम्पल हुआ यूनिफॉर्म का, और किस टाइप के एजुकेशनल प्रोग्राम्स या अर्ली इनिशिएटिव्स ला सकते हैं इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए? देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की बात करें तो डेफिनेटली वी कैन मेक सम मूवीज़ और एनिमेटेड फिल्म्स ऑन दैट टू रेज अवेयर। जैसे इनसाइड आउट एक बहुत अच्छी मूवी है, राइट, Lovely सो दैट टीचेस, तो जिसमें इमोशनल अवेयरनेस बढ़े इंसान की, और थिंकिंग डेवलप हो कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिनल, इसका डिफरेंस क्रिएट हो, राइट। इसके अलावा टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप जो कई बार मेरे स्कूल में, मैं हमारे यहाँ होता था कि पीयर सपोर्ट या बडी सिस्टम, यू गेट अ पर्सन हु विल सपोर्ट यू, राइट, तो वो सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। और एक्टिव इंटरवेंशन, या कई बार मैं भी स्कूल्स में जाता हूँ या कॉलेजेस में भी जाता हूँ टू गिव टॉक्स ऑन मेंटल हेल्थ, तो देयर वी ऑल्सो पुट आउट दीज थिंग्स कि वी ऑल आर यूनिक एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट मोर। Right. और जो आपके अपने एस्पेक्ट हैं उन पे आप ज़्यादा काम करें रेदर देन दूसरों से कंपेयर करने के, Right. तो आपके मन में एक संतुष्टि डेवलप हो सकती है अपने आप को लेकर। एंड लुक एट डिफरेंट पीपल एंड अप्रिशिएट द डिफरेंसेस ऑल्सो। जापान में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो ब्रोकन आइटम्स को जोड़ते हैं गोल्ड से। Right. You heard about it? Yes. So that is a very beautiful concept where they teach कि there is a beauty in imperfection also. Right. Appreciate Right. that. Right. इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस हों तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आजकल एक हैप्पीनेस करिकुलम भी होता है Definitely, कुछ yes. स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे आपको रैशनैलिटी में थिंक करना है, कैसे एक्सेप्टेंस लानी है चीज़ों की, ठीक है, और आपकी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एजुकेशन, आपके रिलेशनशिप, आपकी अपनी हेल्थ, Right. फिजिकल एंड मेंटल, उन पे फोकस करें रेदर देन दीज एट्रीब्यूट्स। ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सागर, अगर मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं इन कपड़ों के अंदर, वी आर फीलिंग फाइन, बट सपोज इन्हीं कपड़ों के अंदर हम बीच चले जाएं तो हमें इन्फीरियर फील होगा या स्टूपिड फील होगा। तो ये कंटेक्चुअल चेंज है, ये नहीं कि आप खराब हो गए या मैं खराब हो गया, बस सिचुएशन बदल गई। सेकेंड चीज़ प्रिवेंशन में, एक सोसाइटल लेवल पर भी हमें
मीडिया में कंट्रोल चाहिए, राइट? कई बार मैंने ऐसे कैंपेन्स भी देखे विच आर गुड, वेयर सेलिब्रिटीज हैव कम अप एंड दे हैव पोस्टेड देयर नो मेकअप फोटोज, no filter photos, and they have shown it to the world, you know, कि we are not just this character which you are seeing on the screen, we are also someone else, ठीक है? तो that is good, you know, celebrities का या influencers का एक ये part भी है, if you are influencing society, influence them with reality also, है ना? ये सारी चीज़ें अगर हम करने लगे तो बहुत बेटर है. एक कैरेक्टर अगर किसी ने प्ले किया है, ठीक है, मैं सच में चाहूँगा अगर कोई मान लो नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले कर रहा है, मेरा सजेशन ये होगा इफ समबडी टेक्स इट कि वो एक्टर अगर बाद में आकर एक अलग से एक वीडियो बनाए या एक मैसेज दे सोसाइटी को कि दिस इज जस्ट अ कैरेक्टर, ठीक है, इट्स नॉट दैट आई वांट यू टू बिकम दैट, ठीक है. हर एक सुपर हीरो मूवी में भी एक विलन होता है, तो आप विलन नहीं बन जाओगे, ठीक है, डेफिनेटली. सो दैट इज हाउ यू डू इट. इंटरवेंशन की जहाँ तक बात करें, सबसे पहला होता है सपोर्ट सिस्टम इन दिस. अंडरस्टैंड समवन. आप सिर्फ समझाते मत रहो, लेक्चर देना कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. आपका ब्रेन मान नहीं रहा है, आप समझो ना. अगर आपका ब्रेन एक राइट डिसऑर्डर्ड नहीं होता, बीडीडी नहीं होता, तो समझ जाते हैं आप, ठीक है. आफ्टर 1-2 बार के बाद समझ जाते हैं आप, ठीक है. यही नॉर्मल इमेज कंसर्न और एक बीडीडी में फ़र्क है. मान लो मुझे नॉर्मली लगता है कि ये चीज़ ख़राब है, ठीक है, मैं कुछ करूँगा, थोड़ा बहुत करूँगा, नहीं होगा, आई विल मूव ऑन, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, ठीक है यार जितना हो रहा है, ठीक है. आई एम गोइंग टू जिम, अगर 6 पैक नहीं बन रहे, ठीक है यार, मैं रेगुलर जाके एक्सरसाइज करूँगा, आई विल डू टू माई एक्सटेंड एंड आई विल कैरी ऑन विद माई जॉब. इंपॉर्टेंट है, आई विल नॉट लीव माई जॉब. डेफिनेटली. राइट. बीडीडी वाला इंसान जॉब छोड़ देगा, ठीक है. तो इस तरीके से आप उनको सुने, समझे, और अगर आपसे हेल्प नहीं हो पा रही है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग इट, आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो गुस्सा और चिढ़ना मत करो ना, उसको अवॉइड करो. आपका इतना रोल है, प्लीज टेक देम टू अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड. एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है उनको. आप देखेंगे कि बीडीडी का जो इनिशिएशन है वो टीनेजर एडोलसेंट में है, राइट. लेकिन एक और रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि मिड लाइफ में ये दोबारा पीक कर सकता है. तो आप देखेंगे कि कई लोग मिड लाइफ के बाद सोचते हैं मुझे फाइन लाइंस हो गए हैं, रिंकल्स हो गए हैं, मेरे लिप्स जो हैं इतने फुलर नहीं लग रहे हैं, कलर मेरा डाउन हो रहा है. दे कीप विजिटिंग द डर्मेटोलॉजिस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते रहते हैं विच हार्म देम रेदर देन हेल्पिंग देम. प्रोफेशनल्स की भी जिम्मेदारी बनती है बहुत ज़्यादा कि अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यू ऑल आर एजुकेटेड, वी ऑल नो इट, बीडीडी, तो आप ही अपने पेशेंट्स को बताएं कि इवन इफ यू ट्राइंग दिस, प्लीज गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल. साथ में जाओ, यहाँ भी आओ, कोई मना नहीं है. गो टू अ थेरेपिस्ट, ऑल्सो लर्न टू हाउ टू अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट दीज चेंजेस इन लाइफ. वरना एक्चुअली में मिड लाइफ क्राइसिस हो जाएगा. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली. तो ओके. आज के टाइम पे इंडियन कंटेक्स्ट में रिसर्च और स्टडीज़ इसके बारे में क्या बताती हैं? राइट. तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बीडीडी के बारे में बहुत स्टडीज़ नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो काफ़ी अच्छा डेटा हमें देती हैं. कुछ स्टडीज़ हुई है 2012 के अंदर, जहाँ पे देखा गया है कि डर्मेटोलॉजी के ज़्यादातर पेशेंट या प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो एक्चुअली बीडीडी से सफ़र कर रहे होते हैं एंड दे रीच देयर, दे ट्राइंग टू सीक हेल्प. एंड आप यकीन नहीं करेंगे सागर, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये बताते हैं कि उनके डॉक्टर्स ने भी उनको बताया कि आपको बीडीडी है, यू डोंट नीड अ सर्जरी, यू नीड अ थेरेपिस्ट, बट दे केप्ट स्विचिंग द डॉक्टर्स. इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, दे केप्ट गोइंग हेयर एंड देयर एंड हेयर एंड देयर. एंड देखो, इतने सारे लोगों में आपको मैल प्रैक्टिशनर्स भी मिलेंगे, राइट, जो आपको और रून करेंगे, आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करेंगे. दे विल ट्राई टू कीप यू इन लूप. ऑल्सो रिसर्चेस और इंडिया में मेडिकल स्टूडेंट्स पे हुए हैं, 2017 की स्टडीज़ हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि बीडीडी इंडिया में जितना प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस बोलते हैं हम कि कितना है, कितना एग्जिस्ट करता है, तो एक स्टडी जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है वो कहता है कि 2 से 3% इतना ही करता है. लेकिन इंडिया की एक स्टडी है जो बताती है कि ये इंडिया में शायद 5 से 6% भी करता है, बट इट्स अंडर रिपोर्टेड. बिकॉज एक तो पीपल दे डोंट हैव इनसाइट, देयर फैमिलीज डोंट हैव इनसाइट अबाउट दिस प्रॉब्लम, ऑल्सो दे डोंट नो वेयर टू सीक हेल्प. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. What role can public policy and community support can play towards addressing body dysmorphia? सो बात करिए आपने पब्लिक पॉलिसी की एंड अपने कम्युनिटी सपोर्ट की, तो देखिए पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपका रियलिटी बन रहा है वो बहुत हद तक सोसाइटी पे ही डिपेंड करता है, और सोसाइटी वर्क करती है पॉलिसीज़ पे, ठीक है. इन जनरल अगर हम होलिस्टिक व्यू देखें तो तभी तो हर एक कंट्री का एक अलग व्यू है बॉडी के ऊपर, नॉर्म्स अलग हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग हैं, राइट. तो जब हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारा परसेप्शन ऑफ ब्यूटी की, बॉडी डिस्मॉर्फिया की बात, बॉडी का परसेप्शन बनता कहाँ से है सागर, बताओ? खुद से, आई थिंक सेल्फ से, सेल्फ से, राइट.
ये नेचुरली होना चाहिए, लेकिन जब वो डिसऑर्डर हो जाता है तो आप कहाँ से ले रहे हो रेफरेंस? दूसरे से। दूसरा, अगर अनरेगुलेटेड है, ठीक है, वो कुछ भी डाल रहा है, ठीक है, तो आपका उससे अफेक्ट होना लाजमी है, ठीक है। और हर इंसान का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। आप और मैं कितना भी बोले कि हम सिक्योर्ड हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कंटिन्यूस मैसेजेस दूंगा ना किसी चीज़ के बारे में कि ये टैबलेट नहीं लोगे तो तुम एज मस्कुलर नहीं लगोगे, मीडिया के मैसेजेस देखो आप, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, लड़कियों की तरह रो मत, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, मेरा 16 का डोला, ठीक है। तो यू आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड विच हैज़ नो रियलिस्टिक बेसिस, रियलिटी बेसिस ही नहीं है, ठीक है। क्यों? इसके अलावा कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करते क्या इस दुनिया में? राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस की ज़रूरत है। एंड सोसाइटी लेवल पर मैं कहता हूँ अगर पॉलिसीज़ में टाइम भी लगता है, ठीक है, जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंटेंट, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर पुटिंग आउट, एंड प्लीज डोंट पुट आउट समथिंग विच यू डोंट हैव एक्सपर्टीज ऑन। राइट। मान लो मैं कल को कार्डियोलॉजी की बात करूं या हड्डी कैसे जोड़ते हैं, तो दैट वुड बी स्टूपिड, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर ही है कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ बिकॉज आई एम अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल फॉर दैट। राइट। आपका फैशन सेंस अच्छा है, फैशन के बारे में बात करूँ, ठीक है। राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। कम्युनिटी सपोर्ट यहीं से आता है कि हमारे आसपास के लोगों को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, ठीक है। मेरा एक रूल है, एंड ऑफ कोर्स यू नो आई फॉलो इट थरोली। आई नेवर एडवाइस कि आप किसी को भी ना कोई ऐसी चीज़ के बारे में कभी मत टोको विच द अदर पर्सन कैन नॉट चेंज इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। नेवर एवर डू दैट, बिकॉज उससे होगा क्या? आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल दूँ जो आप अभी बदल ही नहीं सकते हो, तुम्हारे बाल खराब लग रहे हैं, तो अभी क्या कर लोगे आप उसका? यू विल जस्ट कीप इट डिस्ट्रेस जब तक वो हो नहीं जाता, ठीक है। तो नेवर पॉइंट आउट इवन इफ इट इज़ देयर। हाँ, कुछ ऐसा है जो हार्म टू सेल्फ या अदर हो सकता है, आप उसमें बोल सकते हो, ठीक है, कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, बट डोंट पॉइंट आउट सिली थिंग्स। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, हैव अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अदर, राइट। ठीक है। आपके बोलने या ना बोलने से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, डिस्ट्रेस ज़रूर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी एज अ सोसाइटी शुड बी सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स दिस एंड एक्सेप्टिंग बॉडीज, राइट। बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बहुत बात करनी ज़रूरी है। इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली ये चीज़ आप जब तक समझेंगे नहीं, एम्पैथाइज नहीं करेंगे किसी के साथ, खुद के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। राइट। आयुष, आपने बोला कि खुद के बारे में समझना, एंड आई थिंक BDD इज़ ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू सेल्फ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये पूछना चाहूँगा बल्कि कि सेल्फ कंपैशन खुद के लिए कैसा एक रोल प्ले कर सकता है फॉर द पीपल टू रिकवर और हेल्प देम रिकवर फ्रॉम बॉडी डिस्मॉर्फिया या BDD। जी, सेल्फ कंपैशन इज द बिगेस्ट थिंग विच कैन हेल्प यू। सेल्फ कंपैशन आखिर है क्या? अगर सेल्फ कंपैशन है अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपने प्रति काइंड होना, दैट्स व्हाट कंपैशन इज। कि आई विल डू टू माई लिमिटेशंस, उसके बाद मैं मान सकता हूँ एंड एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसके आगे जब होगा तब होगा। एक्सेप्टिंग योर वल्नरेबिलिटीज, एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज एंड योर वर्थ, बोथ, उसका बैलेंस रखना, काइंड होना अपनी तरफ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। राइट। क्योंकि BDD में हमारी अपने प्रति ही काइंडनेस चली जाती है। वी बिकम रूड टू आवर ओन बॉडीज, ठीक है। हम उसको ऐसी चीज़ करने पे मजबूर कर रहे हैं जो वो नहीं कर रही है नेचुरली, राइट। ठीक है। उसके लिए हम और हार्म कर लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव जर्नलिंग, एफर्मेशंस, थेरेपी, इन चीज़ों का बहुत रोल है। रैशनल पॉजिटिव सेल्फ टॉक, चेंजिंग द बिलीफ सिस्टम्स, ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इनकलकेटेड इन लाइफ। राइट। सेल्फ कंपैशन इससे भी आता है व्हेन यू हेल्प अदर्स, ठीक है। सेल्फ कंपैशन सिर्फ सेल्फ से नहीं आता, आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, राइट। कि यू फील दैट आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ हेल्पिंग पीपल। अंडरस्टैंड दो, अगर आपके साथ बच्चे हैं या छोटे लोग हैं, आप उनको समझाइए कि आप में खासियत क्या है, तुम जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, राइट। दैट व्हेन इज हाईलाइटेड, दैट इज व्हेन द सेल्फ कंपैशन ग्रोज, सेल्फ वर्थ ग्रोज, सेल्फ एस्टीम ग्रोज। आपको सेल्फ एस्टीम या वर्थ इसीलिए नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके वो प्यारे अंश, आपके वो यूनिकनेस आपके अंदर क्या है, आपने कभी एक्नॉलेज नहीं किया या दूसरों ने एक्नॉलेज नहीं किया। राइट। एक्नॉलेजमेंट इज एन इननेट नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमें एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर क्या होता है कि जो खराब हो जाए उसको पहले एक्नॉलेज करते हैं, क्रिटिसाइज जल्दी होता है। पूरी सफ़ेद दीवार पे एक स्पॉट दिखता है तो मुझे ये तो खराब है, ठीक है। यू डोंट लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, राइट। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। Thank you so much, Ayush. It was wonderful talking to you. Pleasure. And I hope through this video, our viewers get informed, educated, and empowered. Thank you so much.